हाँ जी पुत्र, सो अगले आर्टिकल ते आ जाओ। दैट इज कॉल्ड सिग्मा और समेशन नोटेशन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਫਾਰਮਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ r²। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 3, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ 7। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ r ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਨਾ, r3 ਸਕੁਆਇਰ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ r ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 4 4 ਸਕੁਆਇਰ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ 5 ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, r ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ 7 ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡਿਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1/2 raised par r equal to 1 to let's say infinite if I say, तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੋ ਆਏਗਾ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ 1/2 ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ 1/2 ਕਿਊਬ ਅਪ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਿਨਿਟ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, जीपी है बिल्कुल, कॉमन रेशो 1/2, तो ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, a अपॉन 1 माइनस r दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इदा सो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि जे ਤੇ छोटा सवाल है तो फिर बिल्कुल एक्सपैंड कर दो, देख लो ਕਿਹੜੀ सीरीज बनती है। ठीक है, ਜਿਹਦੇ सिंगल टर्म है, नो प्रॉब्लम, राइट, वी कैन एक्सपैंड एंड वी कैन सिंपलीफाई एंड गेट द आंसर। अच्छा, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ कि समेशन ऑफ a प्लस b, ठीक है, लेट्स से ਇੱਥੇ लिमिट कोई ना कोई लिखी होएगी है ना, लोअर टू अपर, इज इक्वल टू समेशन a प्लस समेशन b, वेयर a एंड b, ठीक है, आर दी फंक्शन ऑफ मतलब अगर इतने मैं लेट्स से वेरिएबल है r इक्वल टू 1 टू समथिंग है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਸਾਡਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, मतलब a ਤੇ b ਦੇ ਆਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ r, मतलब a ਤੇ b ਚ ਕੋਈ r ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल a ਆ ਗਿਆ r², b ਆ ਗਿਆ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇੱਦਾਂ मतलब a b ਦੇ ਚ r ਹੈ। ठीक है, तो मैं जनरल लिख लिया, तो ਇਹਦਾ मतलब अगर ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ r ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੋਲ ਦਿਓ, मतलब प्लस है विच ते समेशन ਅੱਡ-ਅੱਡ हो जाएगा, अगर विच माइनस है तो विच माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनू ऐसा समझो कि अगर मैं कहां कि आ लिखा है 2 दी पावर r प्लस 4r, ठीक है, आ सॉर्ट ऑफ a हो गया, आ सॉर्ट ऑफ b हो गया। ठीक है, अच्छा हम इतने मैं लिखा r इक्वल टू 1 to 4। अच्छा, अगर मैं इनू आ प्रॉपर्टी लावां तो की होएगा, आ हो गया a तो आ हो गया b, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले नू अड कर दो। ठीक है, जो ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਖੋ, प्लस दूजे वाला ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, 4r r इक्वल टू 1 to 4। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 प्लस 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, प्लस ਹਾਂਜੀ h ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4 into 1 है ना, 4 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 4 into 3 प्लस 4 into 4। ठीक है, बेसिकली दो सम बन गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनू बाय डेफिनेशन चलता भी पहला यार वैल्यू पुट करो, तो पहला मैं की करना सी, पहला ये पूरे टर्म च r की वैल्यू 1 पुट करनी सी, की आना सी 2 की पावर 1 प्लस 4 into 1, आ पहली टर्म आनी सी, प्लस फिर मैं की करना सी r की वैल्यू 2 पुट करनी सी, 2 की पावर 2 प्लस 4 into 2 है ना, फिर 3 पुट करना सी 2 की पावर 3 है ना, सो ऐदा ही 2 की पावर 4 प्लस 4 into 4,
फिर ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਪਲੱਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੋ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਆ ਦੂਜੀ 4 into 1 4 into 2 ਐਂਡ ਸੋ on तो बेसिकली ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਪਲੱਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਕਿ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ a into b ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ a into ਸਮੇਸ਼ਨ b ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਡ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੌਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਤੇ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ मीनिंगलेस स्टेटमेंट ठीक है ओके अच्छा सेकंड लिख लो समेशन ऑफ k into a let's say कुछ भी वेरिएबल r equal to 1 to something is equal to k into summation of a where again a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ r ਦਾ फंक्शन है a ਚ ਕੋਈ r ਦੀ टर्म हैगी है k is constant ठीक है ए के बारे में पहला लिखाता है कि ए जिथे भी वरतांगा मतलब वो आर का फंक्शन है तो के के बारे लिख लो वेयर के इज कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ आर ये कोई भी आर की टर्म नहीं है कांस्टेंट दैट मीन्स के डज नॉट कंटेन आर ठीक है जिहड़ा आ समेशन का वेरिएबल है वो नहीं है फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये आसान है समझना मैं कहां लेट्स से 2r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to 4 लेट्स चलो पहला विदाउट करते हैं तो की होएगा पहला r की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 into 1 स्क्वायर फिर r की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 into 2 स्क्वायर है ना 2 into 3 स्क्वायर एंड 2 into 4 स्क्वायर पहला आ लिखोगे बाद च फिर क्योंकि 2 तो हरेक दे नाल है फिर हरेक दे नाल की कढोगे कॉमन कढोगे तो की आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यही ये दसदा है हुण इहनूं वेखो सीधा प्रॉपर्टी देना करना होवे आ हुण आ के है तो आ ए है ना ए च आर की टर्म है ये च आर की टर्म नहीं है कॉन्सटेंट है तो दैट कैन बी टेकन आउट अब बाहर आ जाएगा सो इथों 2 बाहर कर लो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to 4 दैट इज इक्वल टू 2 तो बाहर पे हाँ जी आर की वैल्यू 1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो ये भी की होया तुहाडा आ वाला स्टैप बच गया पहला तुसी लिखना सी फिर कॉमन कढ़ दे ठीक है सो दैट इज द बेनिफिट के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होवे सीधा बाहर काढ़ लो ठीक है सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 ठीक है अगे लिख लो सो मेन आ है कि प्लस माइनस होवे तो अड अड कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ होंदा ही नहीं है कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो बाहर कढ़ दो ठीक है आ दो प्रॉपर्टीज हो गई समेशन दी ठीक है थर्ड लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 3 समेशन ऑफ लेट्स से 1 ठीक है अच्छा के मतलब अंदर कोई के होवे कोई होर टर्म ही नहीं आर दी वो तो तुहानू पता बाहर आ जाएगा ठीक है तो आप 1 तो चलते हैं तो के होएगा बाहर आके अंदर 1 ही बचेगा ना तो इत्थे लिखो अगर आर इक्वल टू लेट्स सी 1 to n है पहला ठीक है r इक्वल टू 1 to n ऑफ 1 सोच के देखो जरा की होएगा थिंक की होएगा ਇਹਦਾ मतलब की है अच्छा अगर इनू वैसे कॉमन सेंस ना करना होवे तो 1 तो लैके n तक कितनी टर्म है n टर्म है तो 1 कितनी बार ऐड होएगा n बार ऐड होएगा ठीक है तो अगर n बार ऐड होएगा तो आंसर n आएगा ठीक है ये तो एक तरीका हो गया सोचने का या इनू एवें सोचो कि ਜਿਹੜਾ ਆ 1 है ना कैन यू राइट r रेस्ट पर 0 समथिंग रेस्ट पर 0 तो 1 होंगे ठीक है 1 to n अच्छा हुण कर लो पहला 1 पुट करोगे 1 की पावर 0 फिर हाँ जी 2 की पावर 0 3 की पावर 0 फिर लास्ट हाँ जी n की पावर 0 एंड समथिंग रेस्ट पर 0 1 है ठीक है समथिंग नॉन जीरो रेस्ट पर 0 1 है तो 1 + 1 कितनी बार है n बार तो आंसर कितना आ जाएगा n आ जाएगा ठीक है सो ये तो मैं ड्राइव कराता और इसकी वैल्यू याद रखो कि जिन्नियां टर्म्स है एक तो लिखे n कितनी टर्म्स है n तो इसका आंसर सिंपल n आ जाएगा
ठीक है। तो एक जनरल भी लिख लो कि अगर लोअर लिमिट 1 तो ना शुरू हो रही होगी, सो एक लिख लो फॉर्मूला कि r इक्वल टू लेट्स से m टू n हो गई, 1 नहीं है, ऑफ 1 पहला फॉर्मूला लिख लो, दैट इज अपर माइनस लोअर n माइनस m प्लस 1। ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब क्या कि गिनती जे एक तो शुरू हो रही है फिर तो एक तो n n आ जाएगा। सो जे एक तो नहीं शुरू हो रही, मान लो इतों शुरू हो रही है, तो जिवें एग्जांपल ले ला मैं r इक्वल टू 2 टू 10, ठीक है, ऑफ 1। सो पहला फॉर्मूला क्या आएगा, 10 माइनस 2 प्लस 1, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 8 प्लस 1 9। ਇਹਦਾ मतलब 9 ਟਰਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਫਿਰ 10 ਟਰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब 10 ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ 9 ਵਾਰ ਆਏਗਾ। सो अगर लोअर लिमिट 1 टू n है तो आंसर सीधा n। अगर लाइक लोअर लिमिट 1 नहीं है तो कोई होर नंबर है नैचुरल नंबर, तो n माइनस m प्लस 1 थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बेसिकली ये दसदा कि इन्नियां टर्म्स है, जिदा मैं एक होर कहां कि टू समेशन 5 टू 10। सो पहली गल तो कॉन्स्टेंट है बाहर कढ़ लो, ठीक है, अंदर बच गया 1, r इक्वल टू 5 टू 10 और 2 बार, हाँ जी, दिस माइनस दिस 10 माइनस 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 6 टाइम 2 12 आ जाए। ठीक है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। और जनरली यहाँ 1 नहीं आता होंगे, r इक्वल टू 1 या कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक तो शुरू होंगे ना शुरू हो थोड़ा पता हो जनरल तरीका जो मैं दसिया। ठीक है। अच्छा वो बाद पॉइंट नंबर 4 लिख लो कि समेशन ऑफ एफ आर r equal to let's say again m to n। पहला लिख लो फिर मैं समझाना कि दैट इज इक्वल टू समेशन f ऑफ r इक्वल टू m टू n। ठीक है। n अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट n प्लस m माइनस r। जस्ट मेक अ नोट फर्स्ट ऑफ ऑल, वो की कहता है कि अगर कोई समेशन लिखे तो लिखा तो एफ आर का मतलब है सम टर्म कंटेनिंग आर। ठीक है। आ जिमें आर की टर्म है। ठीक है। वो कहते तो की करो, वो जिहड़ी भी एक्सप्रैशन है वो अंदर आर की जगह की रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस आर। तो कहता की होगा अगर रिप्लेस कर भी दोगे तो जोड़ा दोनों सम है आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है। ऐदा बड़ा अजीब लगता है समझने कि आ की लिखता, बट अगर मैं तुहानू एक एग्जाम्पल देके समझावा, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक की करदा ते नोट लिख लो, बेसिकली किता कि आ करन दे नाल की हो गया, इट लिख लो, इट रिवर्स द सीरीज नू रिवर्स करके लिखता, सम ते सेम ही रहेगा। और किता की है, आर दी जगह की किता, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस आर रखा। सो ਇਹਦਾ मतलब है एफ ऑफ दिस, ਇਹਦਾ मतलब जिथे थे आर ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ जगह अपर प्लस लोअर माइनस आर रखता बस। ठीक है। बहुता वरत्या नहीं जाती यह प्रॉपर्टी, पहलियां 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड नो। जिवें मैं ना एक एग्जाम्पल ना समझाना, मैं कहा समेशन आर स्क्वायर आर इक्वल टू 2 टू लेट्स से 1 टू 4। ठीक है। अच्छा जी, कहता दैट इज आ ते आ लिखे, दिस इज एफ आर मतलब सम फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऐते तो छेड़िया नहीं आप, जो इत्थे सीगा वही इत्थे आर इक्वल टू 1 टू 4, बिल्कुल ठीक है। की किता, जिथे जिथे आर है उहदी जगह की रखिया, अपर प्लस लोअर माइनस आर। सो जिथे जिथे आर है उहदी जगह की रखांगे, अपर 4 प्लस 1 माइनस आर। ठीक है। आर दी जगह n प्लस m माइनस आर, तो की रख दी आर की जगह 5 माइनस आर। सो ये देखो आर कितने कितने है, इत्थे आर, ये जगह की रख दी है 5 माइनस आर। ठीक है। सो लेट अस प्लेस दिस 5 माइनस आर, जो बाकी बचा कुछ है तो लिखांगे आ लिखा आ जो एक्सप्रैशन लिखी है वो कहता जी आ समेशन बराबर है। ठीक है। अच्छा हुण देखो बराबर है कि नहीं, इनू एक्सपैंड करते हैं। इन्हें की किया, आर की वैल्यू 1 तो लैके 4 तक 1 स्क्वायर, लैफ्ट हैंड साइड प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज योर लैफ्ट हैंड साइड। ठीक है। आर एच एस, हाँ जी, आर 1 पुट करो, 5 माइनस 1 4 स्क्वायर, फिर आर 2 होएगा 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, फिर आर 3 होएगा, समझाएगा 5 माइनस 3 2 स्क्वायर,
और लास्ट R4 होएगा 5 - 4 1 स्क्वायर। सो बेसिकली की है ਉਹੀ सम है उन्होंने रिवर्स करके लिखता है। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग दोज इन सम ऑफ द प्रॉब्लम जिथे लोड होगी। तो ये गल ਉਹੀ है बट उन्होंने घुमा के लिखना होवे ते। ठीक है बेटे, गल समझ आ गई। बट ऑलरेडी मैं कहता पहलियां तीन ਜਿਹੜੀਆਂ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होण। ठीक है, सो ये की ਹੁੰਦਾ कि जे तो नोन सीरीज़ है कोई, है ना, जे प्लस माइनस होया तो अड अड कर लो। ठीक है, जे कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लो, और जे सीरीज़ नोन है फिर एक्सपैंड करके सम कर लो। ठीक है, सो जिमें लेट अस डू फ्यू ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। अच्छा उन्हें नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, मैंने तो नज़र आ रहा है, देखो अड अड कर लो। सो दैट इज इक्वल टू 5 रेस्ट पर n बाई 10 रेस्ट पर n। ठीक है, एन अड अड कर ले, -2 रेस्ट पर n बाई 10 रेस्ट पर n, n इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ए, समझे ना, माइनस बी अलग अलग कर ली। दैट इज समेशन, दैट इज 5/10 ओवरऑल द पावर n। सो 5/10 हो गया 1/2 द पावर n, n इक्वल टू 1 to infinity माइनस, हाँ जी, समेशन आ वाला 2/10 है ना द पावर n, दैट इज 1/5, 1/5 द पावर n अलग अलग कर लिया। हुण अलग अलग हो गया तो यार देखो किहड़ी सीरीज़ बनती है वैल्यू पुट करके, है ना। सो दैट इज 1/2 द पावर 1, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब अप टू इनफिनिट। ये तो पुत्र की बन गया, ये तो तुहाडे कोल जीपी बन गई। ठीक है, इदां ही आह 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब अप टू इनफिनिट। सो ये नॉन सीरीज़ है, सम कर लो। सो ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर। सो आते 1 आ जाऊगा। So 4/5, 1/5, 4/5, that is equal to 1/4, that is equal to 3/4। ठीक है, so this sum is equal to 3/4। समझे कल बेटे? ओके, हाँ जी, करो अगेन, अड सेपरेट कर लो। ठीक है, दैट इज 4n अपॉन 3 दी पावर n, एनू एदे नीचे फिर एदे नीचे माइनस समेशन 2 अपॉन 3 दी पावर n। ठीक है, लिमिट्स हैगियां जो लिखियां। अच्छा हुण देखो आ कॉन्स्टेंट है, एन नहीं बाहर कर लेना। ठीक है, वो ये पाप नहीं करना, मतलब सारा कुछ ही बाहर कर लो बेटे। वेरिएबल जो एन है, एन वाली टर्म नहीं बाहर करनी। सो एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिट, तो 4 बाहर कर ले, तो एन बाय 3 रेस्ट पर एन। ठीक है, माइनस एदे 2 बाहर कर ले, समेसन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिट ऑफ 1/3 दी पावर एन। हुण अगेन आ भी एक सीरीज़ आ गई, आ भी एक सीरीज़ आ गई। आ किहड़ी सीरीज़ आई है देखिए एक्सपैंड करके करो तुसी। हुण फिर मैं पूरा नहीं सॉल्व करना। n1 पुट करो, हाँ जी, 1/3 दी पावर 1, हाँ जी, फिर 2/3 दी पावर 2, हाँ जी, 3/3 दी पावर 3 अप टू इन्फिनिट माइनस ट्वाइस, हाँ जी, 1/3 दी पावर 1, 1/3 स्क्वायर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस सीरीज? AGP 1 2 3 AP है, 1/3 1/3 स्क्वायर आ AGP है। एदा सम कैलकुलेट कर लो, आ प्रॉपर GP है इन्फिनिट, एदा सम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ओके, सो ਉਹਦੇ बाद नैक्सट एक प्रॉपर्टी लिख लो, पंजवीं प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इदा ना लिखा होंगे कई बार सम टाइम डबल समेशन या ट्रिपल समेशन लिखा होंगे, ਇਹਦਾ मतलब की है? इतने वेरिएबल होएगा जैसे लेट्स से m इज इक्वल टू 1 to समथिंग, है ना, मतलब जरूरी नहीं 1 कुछ भी हो जाए, मतलब इतने m वेरिएबल है। ठीक है, इतने लेट्स से n दिता है, n इज इक्वल टू समथिंग, इतने कोई नंबर लिखा होएगा वेयर, लिख लो वेयर m एंड n आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, m एंड n आपस सैपरेट दो वेरिएबल है। तो इनू सॉल्व करने का तरीका की है? तो की करो, पहला अंदर वाला समेशन देखो, मतलब आप इनू सॉल्व करना है। इत्थे वेरिएबल किहड़ा बेटे? m। तो जे m वेरिएबल है तो ਇਹਦੇ अंदर इत्थे ਜਿਹੜੀ भी m की टर्म है ਉਹਨੂੰ रख लो, बाकी ਜਿਹੜੀ टर्म च m नहीं है ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ बाहर कर लो, वो ਇੱਥੇ आ जाएगा। सो बेसिकली ऐदा होएगा आ n वाला समेशन। ठीक है, और
ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ m ਲਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਂਸਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਕਾਲ ਇਟ a, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਟਰਮ 'ਚ m ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਬਲ ਸਮੇਸ਼ਨ k equal to 1 to infinity, ठीक है, n equal to 1 to infinity k upon 2 raised to power n plus k, ठीक है। चलो पहला आ समेशन वैल्यूएट करते हैं। आ समेशन किहड़ा वेरिएबल है, n, ठीक है। आप कर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ अंदर n ਦੀ टर्म हैगी तो ठीक है, बाकी बाहर कढ़ी जा सकती है, ठीक है। सो ठीक है, वो लेट अस सी। सो कितना आ गया, आ तो k सीधा बाहर आ जाऊ, इत्थे आ गया, ठीक है। आ कितना है, 2 दी पावर n प्लस k इंटू 2 दी पावर k, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 रेस्ट पर n इंटू 2 रेस्ट पर k। आई होप दिस थिंग इज क्लीयर। आप एवं एक रख ली, चलो एवं आ के बाहर आ गया, इत्थे रख लिया जिवें, ठीक है। आ गया हुण इहदे चों फिर 2 दी पावर k फिर बाहर कढ़िया जा सकता है क्योंकि इस n नहीं है, ठीक है। सो अगले स्टैप पे लेट मी टेक दैट आउट एज वेल, ठीक है। समेसन k भी बाहर आ गया उपरों और 2 दी पावर k भी बाहर आ गया, ठीक है। और समेशन ऑफ व्हाट, 1 बाय 2 रेस्ट पर n, n इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट, ठीक है। तो इत्थे फिर k इक्वल टू 1 टू इनफिनाइट। हुण सिंपली इहदा आंसर कढ लो की आया, इनू मैं सैपरेटली इहदा आंसर कढ लैना। लेट अस सी व्हाट वी गेट। सो ये की है, इनू एक्सपैंड करो, 1 बाय 2 दी पावर 1, 1 बाय 2 दा स्क्वायर, 1 बाय 2 दा क्यूब अप टू इनफिनिट। हाँ जी, किहड़ी सीरीज़ है, इनफिनिट जीपी। सो इहदा आंसर आ गया a अपॉन 1 माइनस r, 1 आ गया। सो आ वाला आंसर जिहड़ा है, आ वाला ये तुहाडा 1 आ गया। तो देयरफॉर तुहाडे कोल समेशन की बचया, समेशन बचया k इक्वल टू 1 टू इनफिनिट, आ वाला नंबर, ठीक है, k अपॉन 2 दी पावर k, हाँ जी आ वाला, आ 1 आ गया इंटू 1 होता, ठीक है। समझ गल, दैट्स इट। सो आई होप इन्ना क्लीयर है। हुण की करांगे आपां, हुण आपां इनू एक्सपैंड करांगे कि किहड़ी सीरीज़ बनदी देख लो। हाँ जी, पहला 1 पुट करो, 1 बाय 2 दी पावर 1 प्लस k दी वैल्यू 2, 2 बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड 3 by 2 cube up to infinite. Now which series this is? Undoubtedly A G P, 1 2 3 A P चा, and 1 square 2 square 3 square A, sorry 1 by 2 square A G P चा, इनू तुसीं सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा बेसिक हो गया समेशन का, ठीक है। ओके ग्रेट, ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ देयर आर 3 ਨੰਬਰਸ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ए बी सी, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਮੇਸ਼ਨ a, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ a plus b plus c, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। अच्छा अगर लिखा होवे समेशन ए बी, ਇਹਦਾ मतलब दो दो करके लो, हर एक पॉसिबल पेयर ऐड कर लो, ਇਹਦਾ मतलब ये। सो नंबर ਸੀਗੇ 3 ਸਾਡੇ को, ठीक है। सो देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। सो इदां ਸਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ इदां भी ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अच्छा जिवें आ लिखा होवे ਸਮੇਸ਼ਨ ऑफ ए माइनस बी, तो बेसिकली सिमेट्रिकली सारियां लिखी जानियां। सो दैट इज इक्वल टू वट, हाँ जी ए माइनस बी, हाँ जी, फिर अगे क्या आएगा बी माइनस सी, हाँ जी अगे सी माइनस ए,
ठीक है, इफेक्टिवली कट के 0 आ जाएगा आए दे नाल, बी ना बी सी ना सी। ठीक है, अच्छा अगर लिखा हो समेशन ऑफ ए प्लस बी, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਮਾइंड ਕਰਾ ਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਫॉर ए बी सी, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ a ਪਲਸ b ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ b ਪਲਸ c ਤੇ ਫਿਰ c ਪਲਸ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਵਾਈਸ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c। ਅਗੇਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵਰਦੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 3 ਹੀ ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 3 ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to let's say 1 to 5, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ r ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਫਿਰ ਇਨਟੂ, ਫਿਰ r ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਨਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਨਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਆ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ a ਇਨਟੂ b। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ a ਇਨਟੂ b, ਹਾਂਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ a ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ b, where a b are what, a b are the function of that product variable। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ r into r। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to 4। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ r1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 into 1 ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 into 2 ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 into 2, 3 into 3 ਸੌਰੀ, ਸੋ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 into 4। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੰਟੂ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ 2 ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ 2 4 ਇੰਟੂ, ਫਿਰ ਆ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਓ 1 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੰਟੂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਾਡਾ a ਤੇ ਆ b, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ r ਇੰਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to 4, r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to 4 ਸਮੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੰਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੂ ਆ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ, ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ k ਇੰਟੂ a, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ k ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ a ਦੇ 'ਚ a ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to n ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k raised power n into product of a। very easy to understand। अगर मैं कहूँ product of let's say 2 into let's say 3 raised to power r equal to 1 to 4। ठीक है, अच्छा ना कांस्टेंट है, जिमें आ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपैंड कर दे कितना आएगा 2 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਪਹਿਲਾਂ r1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਹਨੂੰ 3 ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਟਰਮਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋਗੇ 2 into 2 into 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ
ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੰਟੂ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ 3 ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰਸ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣ ਉੱਤਰ। ਓਕੇ।